کریں پلیز. جناب اسپیکر میں گزارش یہ کر رہا ہوں، یہ غلط جواب ہے. جتنے 95% پیشنٹ میں ایمرجنسی میں جا رہے ہیں ان کو بطور پرائیویٹ پیشنٹ ٹریٹ کیا جا رہا ہے، ان سے بذریعہ ہیلتھ کارڈ کلیکشن کی جا رہی ہے. کوئی شخص یہ نہیں بتا سکتا وہ کلیکشن کس مد میں جا رہی ہے اور وہ کس مصرف میں خرچ ہو رہی ہے. دوسرا جناب اسپیکر، جہاں فرمایا گیا جواب جی میں کہ وینٹیلیٹر 31 وینٹیلیٹر موجود ہیں، جبکہ وہاں پورے ہاسپٹل میں اگر 7 وینٹیلیٹر بھی ہوں تو میں جناب اسپیکر جرمانہ دوں گا. آپ تھوڑا جذباتی ہو گئے. میری گزارش کرنے کا مقصد یہ تھا، اگر ان کویسچن کے ریز کرنے سے ایک انسٹیٹیوٹ میں ایکٹیویٹی کریٹ ہوتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اس اسمبلی کی کوئی اہمیت ہے، تو کائنڈلی اس اہمیت کو آپ نہ ختم ہونے دیں. یہ آپ کو بھی آنر جائے گا، ہم سب کو بھی آنر جائے گا. بالکل جذباتی نہیں ہوئے. اسپیچ اور کوشچن میں فرق ہے. اسپیچ اور چیز ہے، کوشچن اور چیز ہے. میں تو یہ آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آپ کوشچن کریں جس میں منسٹر صاحب کو بھی آسانی سے سمجھ آئے کہ یہ اسپیچ ہو رہی ہے یا کوشچن ہو رہا ہے. کوشچن طویل اس لیے چلیں ہو جی. گیا. جی خواجہ صاحب پلیز. مجھے کوئی خوشی ہے، مجھے بھائی نے بڑی مدلل تفصیلی بات کی ہے، مجھے بھی سمجھنے کا موقع ملا ہے. سر گزارش ہے کہ جو فاضل ممبر نے بات کی ہے سر، ہم نے جو تعداد لکھی ہے وہ بالکل ایگزیکٹ سوال کے مطابق لکھی ہے. اوورال میں نے اس کے علاوہ تفصیلات نکالی تھیں. کل سٹاف جو ہے وہ 1430 لوگوں کا ہے، جس میں 7 پروفیسرز ہیں، 11 ایسوسیٹ ہیں، 32 اسسٹنٹ پروفیسرز ہیں، 10 کنسلٹنٹ ہیں، 18 سینئر رجسٹرار ہیں، پی ایم او، اے پی ایم او، ایس ایم او، ایم او اس کے علاوہ ہیں. ایم او ہمارے پاس 151 ہے وہاں پہ. مگر یہ کہنا ہے کہ سب ٹھیک ہے، بالکل نہیں ہے. چیزوں کو بہتر کرنا ہے. آبادی کا رش ہے، ہارٹ پیشنٹس کا رش ہے، اس کو بہتر کیسے کرنا ہے؟ اگر آپ مجھے ٹائم دیں تو میں سوال سے ہٹ کے آپ کو جو کارڈک پہ ہماری پالیسی سچ بن رہی ہے پورے پنجاب کی، میں اس پہ آپ کو ایک بریف کر سکتا ہوں پورے ہاؤس کو. اس پہ ایک پراپر ٹاسک فورس بنائی ہے، سی ایم صاحبہ نے، اور وہ ٹاسک فورس صوبے کے تمام جو کارڈک انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو اسیسمنٹ کر رہی ہے. جہاں تک میرے بھائی نے بات کی کہ ملتان جو چوئی پرویز صاحب کا انسٹیٹیوٹ ہے وہ واحد ہے بہالپور میں کارڈک انسٹیٹیوٹ میں محمد راشد صاحب نے اور شہباز صاحب نے اپنے دورے بنایا تھا. رحیم بیار خان میں ہم بائی پاس شروع کر چکے ہیں، اس مہینے اس کا افتتاح کر رہے ہیں. وہاں پہ بائی پاس شروع ہو چکا ہے. ساہیوال کا جو کارڈک انسٹیٹیوٹ ہے، کراس ٹاک نہیں کریں پلیز. کراس ٹاک نہیں کریں پلیز. تشریف رکھیں نا. آپ منسٹر صاحب کا جواب تو سنیں نا. جواب تو سنیں نا پلیز. پھر تھوڑا حوصلہ بھی کریں نا. قریشی صاحب پلیز. سر آپ تشریف رکھیں پلیز. تشریف رکھیں. اس طرح نہ کریں آپ پلیز. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے سر. سر آپ تشریف تو رکھیں. جواب تو آنے دیں منسٹر صاحب کا. سر میں بالکل آپ کو 2 منٹ دوں گا لیکن جواب تو آنے دیں منسٹر صاحب کا. سر 1 سیکنڈ تو صبر کر لیں آپ پلیز. کیا کر رہے ہیں آپ؟ جواب تو آنے دیں منسٹر صاحب کا. سر گزارش ہے کہ ساہیوال جو کارڈک انسٹیٹیوٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ دسمبر تک ہم اس کو فعال کر دیں گے. وزیر آباد انسٹیٹیوٹ ہو، میو، جنا ہو، کیونکہ سر مین لوڈ ہے صرف پی آئی سی پہ. ہم ان تمام انسٹیٹیوٹ کی کیپیسٹی بڑھا رہے ہیں تاکہ جو بائی پاس کا کیو ہے وہ کم ہو، اینجیوگرافی بہتر ہو. نئی کیتھ لیبس 16 کیتھ لیبس انشاءاللہ ہم اگلے فائنینشیل ایئر میں لے کے آ رہے ہیں. جو ایمرجنسی کی بیڈ کی بات کی ہے، دیکھیں میں ان تمام ہسپتالوں کو خود وزٹ کیا ہے اور 2.5-3 ماہ کے عرصہ میں. یہ جو 67 بیڈ کی ایمرجنسی ہے یہ بھی اناؤنس ہو رہی ہے، یہ انشاءاللہ 100 سے زائد چلی جائے گی. رینویشن کا کام پہ ہو رہا ہے، وہ انشاءاللہ فاسٹ ٹریک میں مکمل ہوگا. اگر اس کے علاوہ بھی میرے بھائی کو کوئی شکایت ہے تو وہ مجھ سے آپ ان پرسن بھی کر سکتے ہیں، اس کو بالکل دور کیا جائے گا. جی رانا صاحب. جی رانا آفتاب احمد خان صاحب. یہ جوز بے میں آؤٹ ڈور ڈپارٹمنٹ میں 13 کنسلٹنٹس، 25 ڈبلیو ایم ایس. ایک جنرل پرسیپشن ہے کہ جو آؤٹ ڈور میں جو کنسلٹنٹس ہیں یہ نہیں بیٹھتے ہیں. یہ زیادہ تر اپنی پرائیویٹ پریکٹس پہ توجہ دیتے ہیں. جو ٹرینیز ہوتے ہیں، یہ ہاؤس آفیسرز ہوتے ہیں، ان کے سر پہ چلتے ہیں. وزیر صاحب یہ فرما دیں کہ ان کو پابند کرنا، یا جب یہ آؤٹ ڈور پہ بیٹھتے ہیں ان کی کوئی لسٹ ہوتی ہوگی، کیونکہ دس از جنرل پرسیپشن کہ یہ آؤٹ ڈور میں کنسلٹنٹ نہیں بیٹھتے شام کو اپنی 5-3 ہزار روپے فیس والی. جو یہ روٹین تھی نا، جیسے یہ جو نیشنل ہاسپٹل ہے یا ڈاکٹر ہاسپٹل ہے جن کو ہم ڈاکو ہاسپٹل کہتے ہیں، وہی رویہ جو ہمارے سرکاری ہاسپٹلز میں ہو گیا. تو میری گزارش ہے کہ اس پہ یہ ذرا وضاحت کر دیں کہ پرائیویٹ پریکٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ کیا کر رہے ہیں. خواجہ صاحب یہ بڑا ویلڈ کوشچن ہے رانا صاحب کا. سر جو پرائیویٹ پریکٹس ہے نا وہ تو
हमारे जो अपने इंस्टीट्यूट्स हैं कार्डिक, उनमें भी उसकी इजाज़त है। जहाँ तक राना साहब ने बात की है, जो सुबह OPD है वो सुबह 8 से 2 है। 2 बजे का OPD बंद होती है, फिर जो एमरजेंसी में कंसल्टेंट्स हैं वो एमरजेंसी पेशेंट भी देख रहे हैं और वो OPD के पेशेंट्स भी देख रहे हैं। तो ये एक टाइम है जिसमें एक जो भी कोई सरकारी मुलाजम है, वो चाहे कंसल्टेंट है, वो डॉक्टर है, वो नर्स है, प्रोफेसर, उसका एक टाइम है जिस टाइम शेड्यूल से उसने काम करना है। लेकिन मैंने पहले भी बताया कि इसकी एक तो हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, और मैं ये बताना चाहूँगा, 2 बातें की थी। एक हेल्थ कार्ड पे मैंने इसलिए बात अभी नहीं की कि मेरी बहन जो हिना बीबी हैं उनका सवाल है। हेल्थ कार्ड पे मैं इंशाल्लाह मुद्दलिल आपको बताऊंगा किस तारीख को शुरू हुआ था, किसने क्या किया था, किसके दौर में क्या हुआ था, और एक प्रोफेशनल ओपिनियन इंशाल्लाह मैं अपनी दूंगा डिटेल के साथ में, इसलिए उस पर अभी बात नहीं की। और मेरा यही कहने का मकसद है कि हम अपने जो इंस्टीट्यूट्स हैं कार्डिक, उन पर हमारी टास्क फोर्स काम कर रही है और हम उसके साथ कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। और इन हर अस्पताल में हम खुद विजिट कर रहे हैं, काम को फास्ट ट्रैक पे कर रहे हैं, 2 शिफ्टों में करवा रहे हैं, और कट ऑफ डेट है कि 30 जून तक हमारा मैक्सिमम काम मुकम्मल हो जाए। अस्पताल में एक इशू जरूर है सर, मैं बताना चाहूँगा, जैसे नश्तर है, नश्तर की एमरजेंसी में रेनोवेशन का काम होना है, लेकिन आपने जब एमरजेंसी को बंद करना है तो आपने मुतबादल भी तैयार करना है। ये मुमकिन नहीं है कि आप एमरजेंसी को बंद कर दें, उसका रेनोवेशन का काम शुरू कर दें। सो इसको हमें फेज वाइज करना पड़ता है। अगर 16 वार्ड का काम शुरू है तो 5-5 वार्ड्स करेंगे, क्योंकि उस वार्ड का जो पेशेंट है उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है। मैं सर ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बिल्कुल हमें प्रपोजल भी चाहिए, हमारी लोगों के भी और मीडिया के भी कमेंट्स होते हैं, लेकिन बहरहाल यही डॉक्टर हैं जो डेली लाखों मरीज आ रहे हैं, यही डॉक्टर, यही नर्सेज, यही पैरामेडिकल स्टाफ बहरहाल उनको इलाज वाली की सहूलत फराहम कर रहे हैं। जी मोहतरम आप प्लीज। जी कि महकमे का सेक्रेटरी यहाँ मौजूद होगा, क्या सेक्रेटरी साहब बैठे हैं यहाँ, इसकी वजाहत कर दें सर। जी खाहिश साहब। आपने रूलिंग दी है जनाब। जी मलिक साहब बिल्कुल इसी तरह। सेक्रेटरी हेल्थ सर नश्तर 2 में मौजूद हैं, वहाँ एक वाकया पेश आया सर, इसका मतलब है वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है सर। बात ना सुन लें, मेरा ख्याल है बड़े मलिक साहब तफसील से बात, सारा स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी यहाँ पे मौजूद हैं। सेक्रेटरी जिस तक मुल्तान में है, वो आज या तक कल सुबह तक पहुंचेंगे। और सर दूसरी बात है, ये सवालात आपके इल्म में है कि ये मंडे था हमारा शेड्यूल, हमें कहा गया कि आज कर रहे शेड्यूल, अगर पीर को आता तो सेक्रेटरी यहाँ पे मौजूद हो। जी बिल्कुल ठीक है जी मोहतरम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा आपने सप्लीमेंट्री करना है, आपने सप्लीमेंट्री मेरा अपने इसी से रिलेटेड के सवाल है। हमारे मिनिस्टर साहब पिछले दिनों रहीमर खान गए थे, इन्होंने 2 बातें की हैं। मेरा इनसे मुतालबा है कि मैंने 2 माह पहले जब बजट आया ज़मीनी, मैंने तवज्जो दिलवाई थी हाउस की कि जो हमारा, मेरी बात सुन ले, मैं उससे रिलेटेड बात करने लगा हूँ। आप बात सुन ले, मैं सियासी बात नहीं कर रहा। मैं जी आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करें ना इसके ऊपर। आप हमारी बात सुने। ये नो क्रॉस टॉक जी प्लीज, नो क्रॉस टॉक जी। राव साहब उसी तरफ आ रहा हूँ, आपके क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ। ये मोहतरम, ये विजिट करके आए हॉस्पिटल। मिनिस्टर साहब हमारे मौजूद हैं। मैं इनसे सवाल करता हूँ कि जो इन्होंने रेनोवेशन पे जो DHQ हमारा डिमॉलिश हुआ, टेंडर हुआ, वो काम बंद पड़ा था। पिछले निगरान दौर में जो भी टेंडर दिया गया, जिसको एलोकेट किया गया, वो बिल्डिंग नहीं खड़ी थी। शेख ज़ायद अस्पताल की वो बेहतरीन बिल्डिंग थी, उसकी टाइलें सब कुछ उखाड़ कर उसको रेनोवेशन के चक्कर में नई बिल्डिंग को बर्बाद किया गया। फिर इन्होंने कहा कि जो हार्ड का बना है हमारा, वो भी ओपनिंग करके आए हैं जनाब। वो इनको बताता चलूं, वो पिछले दौर में हमारे PTA के वो अप्रूव हुआ था। और उस आ गया पॉइंट आपका जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मोहतरमा हिना परवेज भट्ट साहिबा का जी। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर। जी मोहतरमा एक सेकंड प्लीज। तो ये बात इन्होंने बिल्कुल वैलिड की है। मैं रहीम खान बिल्कुल गया था, इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त किया है कि वो बेसमेंट में पाइलिंग का काम हुआ और बाकी काम नामुकम्मल। मैं अपडेट सर करना चाहता हूँ कि अब उसकी लेटेस्ट सूरत हाल क्या है। ये बिल्कुल इन्होंने ठीक है कि ठेकेदार की गलती है। 2.5 अरब रुपया जो था डिपार्टमेंट ने IDAP के वाले कर दिया हुआ है। 1 अरब के बिल उसने सबमिट किए हैं, वो बिल हमने रोक लिए हैं। IDAP का मेरा मुसलसल रब्ता है, उस कॉन्ट्रैक्टर को हम ब्लैक लिस्ट करेंगे और अगर जरूरत पड़ेगी गिरफ्तारी की तो उसकी गिरफ्तारी भी कराएंगे। जी भाई साहब थैंक यू जी। मोहतरमा हिना परवेज भट्ट साहिबा जी। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 168 आंसर टू बी टेकन एज रेड।
जनाब डिप्टी स्पीकर, सबसे पहले तो मैं वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन का शुक्रिया अदा करूंगी, जिन्होंने बहुत कम अरसे में सूबे में सेहत के हवाले से दिन रात मेहनत करके बहुत सी इस्लाहात की, चाहे वो कार्डियक पॉलिसी हो या टास्क फोर्स बनाना हो। जी क्वेश्चन आप सप्लीमेंट्री जनाब- करें जी, नो क्रॉस टॉक जी। अच्छा, राणा साहब जनाब तशरीफ रखें ना डिप्टी प्लीज। स्पीकर- राणा साहब तशरीफ रखें। अगर उन्होंने जनाब डिप्टी अगर स्पीकर- उन्होंने 1 मिनट के लिए वजीर साहब की तारीफ कर दी है तो हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए कि ख्वाजा साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पहले भी इन्होंने सेहत के हवाले से बहुत अच्छा काम किया था, अब भी इंशाअल्लाह ताला जिस रवानी से ये काम कर रहे हैं तो मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ भाई साहब। जनाब डिप्टी स्पीकर, जुज अलिफ में आंसर का थोड़ा सा पोर्शन मैं पढ़ना चाहती हूँ कि सूबे में सेहत कार्ड का प्रोजेक्ट अक्टूबर 2016 को ज़िला रहीम यार खान में उस वक्त की हुकूमत यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से शुरू किया गया और इस पे मैं अपने लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और वजीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने सूबे की आवाम को सेहत कार्ड जैसा नो प्रोजेक्ट क्रॉस शुरू टॉक किया। नो क्रॉस टॉक नो क्रॉस टॉक जी। जनाब आप अपने क्वेश्चन से मुतमईन है मोहतरमा? मेरा ज़िमनी सवाल आप जुज प्लीज। अलिफ से है कि इस सेहत कार्ड की हसूल हर एक फर्द के लिए इस सेहत कार्ड के हसूल की अहलियत का क्या क्राइटेरिया है और क्या 2022 के बाद इस क्राइटेरिया में कोई तब्दीली की गई है? जी खाई साहब प्लीज। जी, बहुत शुक्रिया मेरी बहन का। सेहत कार्ड जो था ये एक बात दुरुस्त है सर, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। सेहत कार्ड पे बड़ी बात की गई है, मुख्तलिफ अदवार में सेहत कार्ड चलता रहा। इसकी पहली मीटिंग 2014 में हुई थी प्राइम मिनिस्टर हाउस और मियां नवाज शरीफ साहब ने इसको शुरू किया था और मरियम बीबी ने उसको चेयर किया था। मैं उस मीटिंग में शामिल था। 2014 के बाद हमने इस पर मुसलसल काम किया। हमने एक कंपनी बनाई प्रॉपर, जिस कंपनी ने इसको एग्जीक्यूट करना था। मैं खुद उस कंपनी का चेयरमैन था। इसके जितने भी फाइनेंशियल लीगल एक इसका जो बिजनेस मॉडल है स्टेट लाइफ के साथ, वो हमने खुद तय किया। हमने पहला फंक्शन किया जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब भी आए थे और मरियम बीबी भी शामिल थी। हमने रेफर किया था, मैं भी उसमें मौजूद था 31 मई 2018 तक, और ये ऑन दी रिकॉर्ड है। कंपनी कोई भी जाके देख सकता है, कंपनी में हर मिनट्स मौजूद हैं। 2-2.5 साल मैं खुद उस कंपनी का चेयरमैन रहा। हमने 17 जिले में इसको लॉन्च किया और उसके बाद इसको प्राइवेट और पब्लिक में दोनों में हमने किया। उसके बाद हुकूमत बदल गई, तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई, उन्होंने इसी प्रोग्राम को आगे लेकर चले, इसको UHI कर दिया। अब मैं UHI पे अपनी ओपिनियन भी जोड़ दूंगा कि हमारा उस पर पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या है। आप पहले अगर कुछ सवाल जवाब करना चाहता है, अगर झूठ कहना तो फिर इसका तो नामुनासिब है। मैं बड़े अदब के साथ बात कर रहा राणा हूं। साहब तशरीफ तो अगर आप रखें। शोर मचाएंगे फिर आप शोर भी मचाना मैं भी आप। तशरीफ रखें जी। खाई साहब प्लीज। तो गुजारिश है कि ये प्रोग्राम तो मियां साहब के दौर में शुरू किया गया था और ये वो बातें हैं जो मैंने असेंबली के फ्लोर पे जेल से आके भी की हैं। आज मैं नहीं कर रहा, आप रिकॉर्ड उठा लें। एक एक चीज़ जो UHI में गलतियां थी मैं उस वक्त निशानदेही करता था। उस वक्त यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब बैठते थे, इधर मैडम बैठती थी। सर गुजारिश है कि UHI में जो पैसों का ज़िया हुआ है और किस वजह से हुआ है मैं उसको बताता हूँ। सर हमारी पहली प्रायोरिटी जो है वो पुअर ऑफ द पुअर है। यहाँ पे UHI में हर अरबपति करोड़पति का, हर लैंडलॉर्ड का, हर सनतकार का प्रीमियम भी हुकूमत दे रही है। तो आप कई अरब रुपया उन लोगों का दे रहे हैं जिनको उसकी जरूरत नहीं है, जो उससे बेनिफिट भी नहीं उठा।